Welcome students, welcome to our educational platform here and I believe आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद you will realize that you are going to get a complete package here. We will try कि हम लोग के जो लेक्चर्स हों वो आपके लिए इतने कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट हों कि उसके बाद आपको किसी और रेफरेंस की आवश्यकता ना पड़े. I personally believe कि पहला जो हमारा टीचिंग पार्ट होता है, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई टीच अ स्टूडेंट आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट हेयर. सो द सेम इज द केस हेयर. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर 9th क्लास. सो आई एम गोइंग टू बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स. आई एम गोइंग टू पुट इन माई बेस्ट एफर्ट्स हेयर so that you do understand the very basic part of the chapter and along with that the advanced part of the chapter also. Let's start with the chapter, and as we are seeing, the chapter is our number system, a very common chapter, a very common name here. आप लोग बचपन से नंबर्स, रियल नंबर्स, ये इस नाम के चैप्टर्स पढ़ते चले आ रहे हैं. बट आई स्ट्रांगली बिलीव व्हेन यू विल बी लुकिंग एट दिस वीडियो एंड स्टडीइंग विद अस, you will realize कि कुछ चीज़ें आपको definitely ऐसी पता चलेंगी. till the end of the chapter you will realize yes there's something new here. तो चलिए let's start together. So this is going to be our new beginning and let's hope for the best. तो चलिए with that let's start now. तो देखिए here as you can see we have a number tree here. Number tree which tells us that which type of numbers are here. कितने अलग अलग प्रकार के नंबर्स हमें पता हैं. So that doesn't mean कि इसके बियॉन्ड कोई नंबर नहीं है. जब आप 11th क्लास में आएंगे you will come across a entirely new number and that is imaginary number, जिसको कि हम लोग अभी हो सकता है नॉन रियल नंबर कहें. तो नंबर या रियल है या रियल नहीं है. तो जो रियल नहीं है तो व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश? सो वी कॉल इट इमेजिनरी, hence the name imaginary number. So that's another set of number, but you will come across that number only in 11th class and not before that. So let's concentrate only on real numbers here. तो हमारे लिए अभी सारे numbers real numbers ही हैं. ठीक है. Now if a number is a real number, you all must be knowing, again I will say from your childhood, that if a number is a real number we can categorize into two different class of number, two different types of numbers. And what are they? Rational numbers and irrational numbers. So either a real number will be a rational number or it's going to be an irrational number. But if it's an irrational number, यदि वो आपका अपरिमेय संख्या हुई, irrational number हुआ, that's the end of the road there. Why? Because there's no further classification. तो irrational number है, कहानी समाप्त हुई, खत्म हुई. But if it's a rational number, in that case you can further categorize a rational number to two, that is fractions and integers. तो रैशनल नंबर या प्रॉपर इंटीजर होगा या एक फ्रैक्शन होगा. एंड इन बोथ द केसेस वी कैन फर्दर कैटेगराइज द नंबर्स एंड फर्दर वी कैन से ईदर अ फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो जो फ्रैक्शन है या वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. और जब हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, व्हाट डू वी मीन? तो प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जांपल कैन बी व्हाट? 5/3, isn't that? Or 3/5. What's the example for proper fraction? How do we define a proper fraction? So a fraction is a proper fraction if the numerator is less than denominator. ठीक है. तो अगर numerator आपका denominator से छोटा है तभी वो proper fraction है. So it can't be 5/3. It can be its reciprocal. तो चलिए, आप चूंकि 5/3 लिखा था तो उसका reciprocal लिख देंगे. So that's your proper fraction. Or maybe any other number, maybe 4/7 and so on. You can write infinite many proper fractions. So if numerator is less than denominator, it's a proper fraction. And then we have improper fraction. Now what can be the examples of improper fraction? So it's the reverse case, that is यदि numerator denominator से बड़ा है तो फ्रैक्शन आपका improper है. So as I wrote there,
5/3 is actually your improper fraction, or maybe 22/7 और मे बी एनी सच नंबर। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग अगर चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक 22/7 कैन बी रिटन एज 3 होल 1/7। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखी होंगी डेफिनेटली, बट दैट्स जस्ट अ क्विक रिव्यू ऑफ ऑल दोज थिंग्स। सो अ फ्रैक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज ईदर एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन और एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो गया फ्रैक्शन की कथा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स पे। नाउ हाउ कैन वी क्लासिफाई एन इंटीजर? एन इंटीजर कैन बी क्लासिफाइड ईदर एज अ पॉजिटिव इंटीजर और एज अ नेगेटिव इंटीजर or exclusively as a zero. Zero in itself is a type of integer, a special integer. Zero, याद रखिएगा, zero is neither a like positive number nor a negative number. Zero आपका शून्य ना ही पॉजिटिव है, धनात्मक है, ना ही निगेटिव है, ऋणात्मक है। कैसे? बिकॉज देखिए, नंबर लाइन आपको याद होगी, तो नंबर लाइन में हम लोगों ने देखा है कि कौन से नंबर पॉजिटिव होते हैं। वी कॉल दोज नंबर्स टू बी पॉजिटिव विच आर ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो एंड नंबर्स टू बी निगेटिव विच आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो। तो इट्स जीरो विच डिसाइड, जीरो ही वो रेफरेंस पॉइंट है, जीरो ही वो नंबर है जो डिसाइड करता है कि नंबर आपका पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो वो सारे के सारे नंबर्स जो जीरो के राइट साइड पे हैं वो पॉजिटिव हैं। क्यों पॉजिटिव हैं? क्योंकि वो जीरो के राइट साइड पे हैं। एंड ऑल दोज नंबर्स विच आर ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो आर निगेटिव। एंड व्हाई आर दे निगेटिव? बिकॉज दे लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। सो जीरो इज द रेफरेंस पॉइंट। तो जीरो के कारण पॉजिटिव निगेटिव है। जीरो स्वयं ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, इट्स अ न्यूट्रल नंबर। सो जीरो को हम लोग फिर एक अलग कैटेगरी में कहते हैं, पॉजिटिव नंबर से एक तरफ, निगेटिव इंटीजर से एक तरफ। जीरो इज एन इंटीजर, डेफिनेटली एन इंटीजर बट अ डिफरेंट एंड स्पेशल टाइप ऑफ इंटीजर। अब देखिए, हमें पता है कि जो आपके नंबर positive integers है, we call them as natural numbers or the counting numbers, you remember it, isn't that? तो counting numbers या natural number, but if we add zero to it, so natural number plus zero gives us whole number, तो वो आपका फिर whole number हो जाता है। तो जीरो के साथ साथ यदि हम नेचुरल नंबर को जोड़ दें तो वो अपना होल नंबर हो जाता है। तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम का ट्री। ठीक है, तो ये आई बिलीव हो सकता है रैशनल नंबर का नाम आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने ना सुना हो, अदरवाइज आई बिलीव आप लोगों ने सारे नंबर्स का नाम तो डेफिनेटली अभी तक सुन ही लिया होगा, रैशनल, इरैशनल, लाइक इन जनरल एंड ऑल दीज इन पर्टिकुलर। ये सब तो आप लोग, नीचे वाले सारे नंबर्स तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखे हुए हैं, उन पे प्रश्न भी अच्छे से कर रखे होंगे। तो चलिए, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड डिफाइन दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स। पर्टिकुलरली देखिए, इन पूरे नंबर, सारे नंबर्स में एक नंबर ऐसा है जो कि बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है, जिसको हम कहते हैं, उसका एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। ठीक है, एंड दैट इज रैशनल नंबर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर हियर। So before we come to the definition of rational numbers and look at like rational, irrational numbers and several main things which we are going to look at in this chapter, let us first look at few important points here. Though इसमें से ज़्यादातर point I believe we have already discussed, like every natural number is of course a whole number. सारे के सारे natural number आपके whole number है, but एक ऐसा whole number है जो natural number नहीं है, and that is zero. शून्य है वो नंबर। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एवरी होल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ये तो चलिए हमने आपको बता दिया, इज अ नेचुरल नंबर। जीरो, ये तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड द ओनली प्राइम नंबर, only even prime number. I'm sorry here, so that's that mistake here. तो यहाँ पे हम लिखेंगे this is the only even prime number. तो 2 आपका पहला प्राइम नंबर है और एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सो दोज वर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ लेट अस क्विकली मूव टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स बच्चों।
So coming to the definition of rational numbers, how do we define it? तो देखिए, let me first read it out what the definition says. The statement is any number that can be expressed in the form of p by q, where both p and q are integers, and this is the most important condition for a number to be a rational number. सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन कंस्ट्रेंट है ये. नॉर्मली बच्चे ये मिस कर जाते हैं एंड देन दे से दैट दे थिंक, आपके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. q नॉट इक्वल टू 0 हैज नथिंग टू डू स्पेसिफिकली फॉर अ नंबर टू बी अ रैशनल नंबर. ये आप ध्यान रखिएगा, q नॉट इक्वल टू 0 ये इसलिए ये कंडीशन है क्योंकि q आपका डिनोमिनेटर में है. कैन यू एवर हैव जीरो इन डिनोमिनेटर? क्या आपके डिनोमिनेटर में कभी भी शून्य आ सकता है? आंसर इज नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो जीरो तो डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं आ सकता. सो व्हाट्स सो स्पेसिफिक अबाउट अ रैशनल नंबर? क्या हम कहें कि इरैशनल के अगर नंबर है उसके डिनोमिनेटर में जीरो आ सकता है? तो आंसर विल बी ऑफ कोर्स नो, नहीं आ सकता. तो जब जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता तो इसका मतलब रैशनल के होने ना होने से इस कंडीशन का कोई उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है. रैशनल हो या इरैशनल हो, डिनोमिनेटर में जीरो कभी भी नहीं आ सकता. एंड मोर ओवर, जस्ट बिकॉज यू कैन एक्सप्रेस अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q डजंट मीन इट्स गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लिखें, एक एग्जाम्पल हमने लिखा √2/3. नाउ इज इट अ रैशनल नंबर? योर आंसर विल बी ऑफ कोर्स नो. आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, ये रैशनल नहीं है. दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है आपका सामने, ये रैशनल नहीं है. ठीक है, बट है तो ये p by q फॉर्म में. इजंट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q हियर? तो आंसर इज यस. इजंट q नॉट इक्वल टू 0? तो ये भी ठीक है भाई, q 0 नहीं है. तो फिर क्यों रैशनल नहीं हुआ? ये क्यों नहीं हुआ? रीजन इज क्योंकि जब तक दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपके इंटीजर नहीं होंगे तब तक आपका नंबर p by q के फॉर्म में लिखा हुआ कोई भी नंबर रैशनल या परिमेय संख्या नहीं होगी बच्चों. ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत क्लियर है और सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हमने सेवरल टाइम्स, लेट मी पुट इट इन डिफरेंट कलर ऑल्सो. ठीक है, तो आपके हमने 2 डिफरेंट कलर के बॉक्स में से लिख दिया है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट टू डिसाइड वेदर अ नंबर इज अ रैशनल नंबर और नॉट. दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. एंड नाउ यू नो व्हाई इज इट नॉट अ रैशनल नंबर? रीजन बी आपका जो बिकॉज योर numerator here, because numerator that is p is not an integer. वो जो आपका न्यूमरेटर है वो यहाँ पे रूट ऑफ 2 है जो कि इंटीजर नहीं है. ये बात आप लोगों को पता है. लेटर लाइक मे बी आफ्टर फ्यू मोमेंट्स आई विल बी टेलिंग यू, डिस्कसिंग यू विद यू पीपल कि हम कैसे ये क्लेम कर सकते हैं. पता तो हमें है, बट अगर आपसे कोई आपका छोटा भाई बहन पूछे कि भाई क्यों ये √2 इंटीजर नहीं है, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन इट? तो वो एक्सप्लेनेशन भी हम आपको जल्दी से देंगे, बट मे बी आफ्टर सम टाइम. अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं डेफिनेशन पार्ट पे. ठीक है, तो डेफिनेशन आई बिलीव आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. किसी भी नंबर को जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकें, so any number that can be written in the p by q form where both p and q must be integers, where both p and q are integers is a rational number. q नॉट इक्वल टू 0 ये एक यूनिवर्सल कंडीशन है. ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता. ये मैथमेटिक्स की यूनिवर्सल कंडीशन है. इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज इट हैज टू होल्ड. ठीक है, तो दैट हैज टू होल्ड हियर ऑल्सो. तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन रैशनल नंबर की, और ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स रैशनल नंबर के. all integers are rational number. Why? Because in case of integer, like I wrote 7, so denominator is 1, minus 8, denominator is 1, 0, denominator is 1. ठीक है, तो all integers positive or negative or 0 are rational numbers. All fraction proper or improper are rational numbers. Given, फिर से given, both numerator and denominator should be positive. ठीक है, तो ये हो गया आपकी definition of rational numbers बच्चों.
Now there's a term called equivalence of rational numbers. So equivalence of two rational numbers, and how do we and when do we claim that two rational numbers are equivalent rational numbers? तो उसका क्लेम का आधार ये है कि देखिए स्टेटमेंट है आपके सामने, two rational numbers are said to be equivalent rational numbers if one can be simplified to get the other. यदि हम एक को सिंप्लीफाई करके दूसरे नंबर के फॉर्म में लिख सकें, so they are like equivalent rational numbers. For example, if I write maybe 12 by 16, and is it equivalent to 3 by 4? Answer is of course yes, because if you wish you can simplify it as if 4 is the common factor here, तो 4 common factor है तो आपका 3 by 4 is equal to 3 by 4 हो जाएगा. So these are two, so 12 by 16 and 3 by 4 are equivalent rational numbers because you can simplify the first one to get the other one. So that's how we define equivalent rational numbers बच्चों. ठीक है, सिंपल इजंट दैट? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट हो गया. तो ये हो गया आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. सो अगेन देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर. पहला पॉइंट है अ रैशनल नंबर has to be expressed in simplest form. We all know it. If I like for example अगर हम आपसे कहें अभी जो हमने आपको नंबर दिया था 12 by 16, if I leave my answer in this form, will you be comfortable with this number? I don't think so. आप बेचैन से हो जाएंगे कि नहीं ये कैसे हो गया. आप डेफिनेटली आप इसे तुरंत लिख देंगे 3 by 4 और आप कहेंगे हाँ ये अब ठीक लग रहा है, because we can't further simplify it. There is no common factor in numerator and denominator. तो अब ये simplest form में आ गया. ठीक है, so that's what the first statement says. जब भी आप आंसर रैशनल नंबर, यदि आपका उत्तर है आंसर है, तो आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही एक्सप्रेस करके छोड़ेंगे. ठीक. सेकंड, एनी रैशनल नंबर इज सेड टू बी in simplest form if P and Q are co-prime numbers. So now don't miss this term here. ठीक है, आप इस टर्म को नहीं मिस करेंगे, which is co-prime numbers. मतलब आप ये जैसे ये दो नंबर अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है बच्चों. 3 by 4 is in the simplest form. Why? Because 3 and 4 are in like co-prime numbers. ये जो दो नंबर हैं, दो इंटीजर्स हैं, they are like co-prime, आपस में ये प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 प्राइम नहीं है, 4 कंपोजिट है. 3 प्राइम है, चलिए ठीक है, लेकिन 4 कंपोजिट है, बट टुगेदर दे आर को-प्राइम नंबर. व्हाई? बिकॉज वी कांट फर्दर सिंप्लीफाई इट. और उसका एक डेफिनेशन भी है, देखिए, 2 इंटीजर्स आर सेड टू बी को-प्राइम नंबर. 2 इंटीजर को-प्राइम कहलाएंगे यदि उनका HCF 1 है. If the HCF of those two numbers is 1, then our numbers are called co-prime numbers like 3 and 4 here. So for example, we have taken like examples here also. 7 and 11 are co-prime number. तो खैर यहाँ तो 7 और 11 दोनों ही आपके प्राइम नंबर्स हैं. तो दो प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका जो ऑफ कोर्स उनका जो HCF है वो 1 ही होगा. बट यू लुक एट दीज टू नंबर्स, नीदर ऑफ देम इस प्राइम. दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं, रादर दोनों ही कंपोजिट है. ठीक है, क्यूब है, 2 raised to the power 4 है. सो बोथ आर कंपोजिट नंबर बट दे आर को प्राइम नंबर्स. रीजन, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना? देयर HCF इज 1. तो कैसे भी जैसे भी दो नंबर हैं यदि और उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो फिर आप कहेंगे कि वो नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, तो आई बिलीव आपको ये टर्म याद रहेगा आगे तक बच्चों. ठीक है, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू योर डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड लाइक एक्सप्रेसिंग इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म.